Good morning student, welcome back. EduFly JEE NEET. So let us solve top 5 question from IIT JEE. So first question is, a ball is thrown horizontally from the top of the tower with velocity 30 meter per second. During its motion at a particular point, the horizontal and vertical component are equal. It is given that horizontal and vertical component are equal. Find the time to reach at this point. So according to the questions, आप देखें क्या क्या बोल रहा है. क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि a ball is thrown horizontally from the top of the tower with velocity 30 meter per second. It means it is having ux or u equal to 30 meter per second. There is no vertical velocity. It is only horizontal velocity, that is 30 meter per second. It means ui becomes 0. Initial velocity of the y component becomes 0 meter per second. At a particular point, horizontal and vertical component are equal. So it means ux at somewhere vx equal to vy. At somewhere, this is the condition. So we need to find out the time to reach at this point. Let us suppose at this point the vertical vx, this is velocity of x component, and this one is the velocity of y component. So starting vy is nothing but uyt plus half ayt square. So at initial velocity is 0. So it means vy equal to half into ay. Either you can apply this one, vy equal to ui, v equal to u plus ayt. So ui equal to 0 and acceleration which is acting downward, that is 10 meter per second square. So ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 into t. So this is vy, and ui we know there is no acceleration in y direction. So we can say vx is equal to ux because ax becomes 0. So it means that is 30 meter per second. According to the question, we have to find out the time. यहाँ पे vx है, यहाँ पे vy है, तो यहाँ पे बस आपको ये और ये क्या करना है, इक्वल करना है. According to the given condition, vx equal to vy. So vx is how much, 30 is equal to vy is nothing but 10 into t. So t is equal to 3 second. At t is equal to 3 second, the velocity component is vy becomes how much, when t is equal to 3 second, that is 30. So at this point vy becomes 30 meter per second and vx also 30 meter per second. So this is the answer of this question. So let us do second problem. So let us discuss question number 2. At t equal to 0, a bird starts flying horizontally from the top of the tower of height 1.25 meter with initial acceleration दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक चिड़िया यहाँ पे बैठी है और इस चिड़िया, ये जो चिड़िया है ये उड़ना चालू करती है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से. ऑलराइट, एट सेम इंस्टेंट अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट बी. ये पॉइंट बी है, यहाँ से एक स्टोन प्रोजेक्ट किया जाता है
on the ground as shown. If the stone hits the bird during its downward motion at the angle of 45 डिग्री, यहाँ पे एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये बता रहा है 45 डिग्री डाउनवर्ड मोशन में जो स्टोन है 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम एट विच स्टोन विल हिट्स द बर्ड। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कि एक लड़का है, यहाँ से एक पत्थर फेंका, जब पत्थर फेंका उसी समय एट टी इज इक्वल टू 0 पे जब पत्थर फेंका गया उसी समय ये चिड़िया जो है उड़ गई, और चिड़िया हॉरिजॉन्टल में उड़ी है, ऐसे नहीं उड़ी है। लेकिन ये कह रहा है जब पत्थर यहाँ से जब फेंका गया और जब पत्थर डाउनवर्ड मोशन 45 डिग्री बनाते हुए कर रहा था तो पत्थर जो है वो चिड़िया को लग गया, तो वो समय बताना है जब पत्थर चिड़िया को लगा है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा हो, पहले वो चीज़ें हम देखते हैं। लेट अस अज्यूम कि यहाँ से u वेलोसिटी से अगर थीटा एंगल से फेंका गया है तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से, u cos थीटा स्टोन के और ये u sin थीटा। ठीक, तो फार स्टोन अगर लिखते हैं, फार बर्ड अगर लिखें, फार बर्ड अगर मोशन देखें तो बर्ड जो चल रही है, बर्ड x दूरी चल रही है यहाँ से, इस टॉप ऑफ द टावर से हॉरिजॉन्टल में x चल रहा है, तो x बराबर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बस एक्सेलरेशन है हाफ g की मतलब g मतलब 10 इंटू जी हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू दिया है 1.5 इंटू टी स्क्वायर, या यू कैन से 0.75 टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करें फॉर स्टोन इन एक्स डायरेक्शन मोशन, इन एक्स डायरेक्शन मोशन, तो ये स्टोन कितना दूरी चला है 3 मीटर प्लस एक्स मीटर, तो 3 प्लस एक्स मीटर, ये इतना दूरी स्टोन चला। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन जो स्टोन चल रहा है वो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन मोशन लिख रहे हैं तो इसमें तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज यू कॉस थीटा इंटू टी। जिस समय वो टकराया है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे टी बराबर टी पे, टी इज इक्वल टू टी पे टकरा गया, पत्थर और चिड़िया दोनों हिट कर गए। अब बात ये आती है कि जो वाई डायरेक्शन मोशन होगा, वाई डायरेक्शन मोशन की अगर हम बात करें तो पत्थर को कितना ऊंचाई तक चलना है 1.25, तो 1.25 ये मीटर, ये इतना ऊंचाई चलना ही है। तो एस वाई बराबर यू वाई टी, तो यू वाई टी मतलब यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी इंटू टी स्क्वायर। सो दीज आर दी 3 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पहले डालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस एक्स के जगह पे 0.75 इंटू टी स्क्वायर एज यू कॉस थीटा इंटू टी। सो यहाँ पे अगर ये इसको 4 इक्वेशन बनाते हैं तो 3 एंड 4 को ऐड कर दें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4.25 प्लस 0.75 टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑलराइट, अब बात ये आती है कि जब पॉइंट ऑफ हिटिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है दोनों 45 डिग्री बना रहा है। एट दी पॉइंट ऑफ हिटिंग की बात करें, पॉइंट ऑफ हिटिंग, एट दी पॉइंट ऑफ हिटिंग की अगर हम बात करें तो हमें दिख रहा है क्या, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई। अब वी एक्स मतलब क्या है,
u cos थीटा, x कंपोनेंट अगर हम देखें तो u cos थीटा इंटू टी। अगर हम vy की बात करें यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ फिटिंग, तो ये हमें दिख रहा है क्या वैल्यू है। अगर यहाँ पे ये तो दूरी हो जाएगी, ये तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, vx में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कुछ नहीं लगता। y डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, डेट इज u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी, वही v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो यहाँ माइनस लगा दिया। और ये कह रहा है कि ड्यूरिंग डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल से मतलब मैक्सिमम से आगे निकल चुका है, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ हमें दिख रही है क्या, u cos थीटा प्लस u साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, gt। अब ये gt की जो वैल्यू है, u cos थीटा प्लस u साइन थीटा की जगह gt रख सकता हूँ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.25 प्लस 0.75 टी स्क्वायर। u साइन थीटा प्लस u cos थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, gt रख सकता हूँ, तो gt स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, माइनस प्लस gt स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो प्लस gt स्क्वायर। अब gt की हाफ gt स्क्वायर, तो g की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो ये वैल्यू कितनी, 5t स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ, 5t स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे तो 4.25 बराबर 4.25 टी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1 सेकेंड आ गई। अब ये जो t इक्वल टू 1 सेकेंड आया है, इस समय पे ये जो बॉल बच्चा फेंका था, उस समय जाकर के वो चिड़िया को लगा है, वो चिड़िया को हिट किया है। तो आप उसकी लोकेशन भी बता सकते हैं, क्योंकि समय पता चल चुका है, तो उसकी लोकेशन कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितने पे, x इज हाउ मच, 0.75 मीटर। तो यहाँ से ये x की वैल्यू 0.75 मीटर, x डायरेक्शन मोशन, वो तो उसकी मैक्सिमम हाइट भी बता सकते हैं, तो क्योंकि सिमेट्रिक प्रोजेक्टाइल होगा ना, तो 7.25 डिवाइडेड बाई 2 पे मैक्सिमम हाइट होगी इसकी पत्थर की, तो 0.75 बाई 2। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो लेट अस डू प्रॉब्लम नंबर 3। सब टॉप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई नीट। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। 2 पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड with an acceleration of g. At the initial moment, the particle were located at one point at the top of the tower. तो बोल रहा है कि 2 पार्टिकल हैं, वो टॉप ऑफ द टावर पे लोकेटेड हैं, यहाँ पे मान लें, और ये बोल रहा है टॉप ऑफ द टावर एंड मूव विद वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर एंड 4 मीटर हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। सो पार्टिकल ए मान लेते हैं कि ये इधर जा रहा है, और पार्टिकल बी वो इधर गिर रहा है। ऑलराइट, ये पार्टिकल ए इट स्टार्ट्स 3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस पार्टिकल मूव विद 4 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन दिया है, हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। फाइंड द टाइम आफ्टर द प्रोजेक्शन when their velocities are mutually perpendicular to each other। यहाँ पे बोला कि वेलोसिटीज़ मान लेते हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसे ये वेलोसिटी होगी, यहाँ पे ये वेलोसिटी होगी, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, ऐसा कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है। तो यहाँ पे लेटेस्ट मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे यहाँ पे जी इंटू टी, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा ही लगेगा, जी की वैल्यू नीचे तो लगेगी ही, यहाँ पे भी जी की वैल्यू नीचे लगेगी। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम वी ए लिखना चाहें, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एट ए लिखना चाहूँ, तो मुझे पता है ये -3i कैप, चूँकि ये वाला नेगेटिव है, माइनस जी इंटू टी, माइनस जी इंटू टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो u की जगह पे ये माइनस है, माइनस क्यों, क्योंकि इस साइड है,
और माइनस जी टी मतलब नीचे जा रहा है, तो वी ए का वेलोसिटी का ये वेक्टर क्वांटिटी आ गया वी ए वेक्टर। सिमिलरली वी बी वेक्टर ऐसे, वी बी वेक्टर का यहाँ भी माइनस जी इंटू टी नीचे लगेगा, तो यहाँ पे वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी बी बराबर, और ये 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है इन एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव 4i कैप माइनस जी इंटू टी, माइनस जी इंटू टी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इफ दिस वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्या पता है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि वी ए डॉट वी बी बिकम्स जीरो, डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। अगर ऐसा कंडीशन होता है, परपेंडिकुलर की बात कहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे वी ए की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 3i कैप माइनस जी इंटू टी, जी की वैल्यू 10 टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4i कैप प्लस माइनस 10 टी, तो i डॉट आई 1, तो डेट इज माइनस 12, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, सो 10 10 जा 100 इंटू टी स्क्वायर बिकम्स 0, सो 100 टी स्क्वायर बिकम्स 12, या टी स्क्वायर इज 12 बाई 100 का अंडर रूट, ये वैल्यू कितनी 2 अंडर रूट ऑफ 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, और यहाँ पे 10 का रूट 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो अंडर रूट ऑफ 3 बाई 5 सेकेंड। सो एट दिस टाइम the time when time becomes under root of 3 by 5, then VA and VB both are mutually perpendicular to each other. So let us solve question number 4. Stay tuned with EduFly JEE. So in continuation with question number 4, a balloon starts rising from earth surface with constant speed of v naught. Due to the wind, the balloon starts horizontal velocity component of Vx equal to a into y, where a is the positive constant and y is the height above the earth surface. Find the horizontal drift of the balloon as a function of height. So यहाँ से क्या है, एक बैलून है, दिस इज ए बैलून, और ये बैलून क्या है कि यहाँ से x दूरी पे ये राइज कर रहा है इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज बैलून यहाँ पे पहुँच चुका है, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो बैलून है ये y डायरेक्शन में, इसकी जो वेलोसिटी है vy, ये इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज v नॉट, ऑलराइट। यहाँ पे ये दूरी y है, दिस इज y एंड दिस वन इज x। अब यहाँ पे कह रहा है x में जो वेलोसिटी है डेट इज a इंटू वाई, सो दिस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी डेट इज v नॉट। सो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर विंड ऐसे बह रही है, ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, तो इसकी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगी बैलून की, ये बताना है। तो मुझे जो बेसिक चीज़ें पता हैं कि अगर हम Vx की बारे में बात करें कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन that is Vx is a into y and a into y is nothing but, अगर आफ्टर t टाइम में मुझे ड्रिफ्ट पूछा जाए तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, Vy is nothing but v नॉट इंटू टी। तो यहाँ पे ay अगर y डायरेक्शन में y की वैल्यू पूछी जाए तो v नॉट इंटू टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा v नॉट इंटू टी, दिस इज नथिंग बट Vx। अब हमें x में ड्रिफ्ट पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Vx को डिफ्रेंशिएट, Vx को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू वी नॉट इंटू टी। सो यहाँ पे dt लिख सकता हूँ। अब x का लिमिट लिख लेते हैं, जब समय t बराबर 0 था, जब t इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू 0 थी यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक ये Vx में इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से ये वेरी हो रहा है, तो x में ड्रिफ्ट हमें चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए थी, सिंपल x की वैल्यू चाहिए थी। जब किसी समय टाइम t पे, तो इसका मान लेते हैं ड्रिफ्ट x होगा, यहाँ से ये ड्रिफ्ट कितना होगा, x होगा, हमें x की वैल्यू बतानी है।
यहाँ से अब क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं, ए इंटू ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ए इंटू वी नॉट इंटू टी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज टी, अपर लिमिट इज लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज टी, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए इंटू वी नॉट टी स्क्वायर बाई 2. So from if we replace the value of t, so t is how much, t is nothing but यहाँ से t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y बाई वी नॉट. तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, a इंटू वी नॉट बाई 2 इंटू टी स्क्वायर इज नथिंग बट y बाई वी नॉट का होल स्क्वायर. तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, a इंटू वी नॉट वाई स्क्वायर बाई 2 वी नॉट का स्क्वायर. तो एक वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट. सो दिस वुड बी द आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट अस डू लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टुडे सीरीज. डेली आपको जेई एडवांस के 5 इलस्ट्रेशन लूँगा. डेफिनेटली वो जेई एडवांस के ही इलस्ट्रेशंस होंगे, या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे या एससी वर्मा के टॉप क्वेश्चंस हैं. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई नीट. सो इन क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल ऑफ 3 मीटर हाइट at the distance of 6 meter and falls 18 meter away from the wall. Find the angle of projection of the ball is. angle of projection पूछ रहा है कि एक बॉल है, ये फेंकी गई है, इस तरीके से बॉल यहाँ पे गिर रही है, जस्ट क्लियर कर रहा है यहाँ पे, जिसकी ये हाइट 3 मीटर है, ये 6 मीटर दूरी है. और यहाँ पे एक बात बोला है कि यहाँ पे एक बात बोला एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल. ये जो वॉल है दैट इज फ्रॉम 18 मीटर अवे, यहाँ पे जाके गिर रहा है. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको पता है कि ये 6 मीटर है फ्रॉम दी बॉल जहाँ से फेंकी जा रही है. तो अब मुझे पता है कि अगर यू से फेंकी गई तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन सा, एक तो यू एक्स डेट इज यू कॉस थीटा, और दूसरा क्या, यू वाई डेट इज यू साइन थीटा. अब अगर ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या पता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. और रेंज के बारे में पता है, रेंज क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा. जुगाड़ क्या है, ध्यान से अगर देखें, g अपान यू स्क्वायर, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जी बाई यू स्क्वायर, जी बाई यू स्क्वायर की जगह पे r डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी के जगह पे साइन 2 थीटा बाई r डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा. यहाँ पे क्या रखना है अब हमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन यू स्क्वायर बाई जी के जगह पे क्या रख देना है, r डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, r डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा इंटू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, कॉमन भी लेना है. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें, एक्स टेन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर
2 इंटू आर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, एक्स टेन थीटा माइनस, यहाँ पे क्या बचा है भी साइन थीटा, ये साइन बाई कॉस मतलब टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, अगर एक्स टेन थीटा बिकम्स कॉमन, वो तो 1 प्लस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस टेन थीटा बिकम्स कॉमन, तो एक्स टेन थीटा बिकम्स कॉमन, तो एक्स बाई आर। फाइनली आपके पास जो इक्वेशन मिल रहा है y इन टर्म्स ऑफ r एंड x, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1 माइनस एक्स बाई आर। अब हमारे पास जो इसके x और y के कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट देखेंगे और रेंज क्या हो जाएगी आपके पास 18 और 6 24, एंड y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 6 मीटर, y की वैल्यू 3, मतलब 6,3 को ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा अगर जस्ट टच करते हुए निकल रहा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, टेन थीटा 1 माइनस x की वैल्यू 6 बाई 24, रेंज इज 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 6 टेन थीटा 1 माइनस 1 बाई 4, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 टेन थीटा 3 बाई 4, तो यहाँ पे 4 बाई 3, तो 4 बाई 3 बराबर 2 टेन थीटा, 2 2 जा 4, तो टेन थीटा बराबर 2 बाई 3, या थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ 2 बाई 3। So this would be the answer, theta is equal to tan inverse of 2/3। So मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है ये पांचों डिफरेंट क्वेश्चन जेईई एडवांस से हैं और इसी तरीके से सीरीज मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूं ताकि वो जो बच्चे जो जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म किए हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। जेईई एडवांस साथ में पैरेलल तैयारी रखें क्योंकि एक ही महीने का टाइम है, तो साथ में पैरेलल तैयारी रखेंगे तो अच्छा भी लगेगा कि मेरा ये कॉन्सेप्ट तैयार है या ये हमारी, आप मतलब जेईई एडवांस फोड़ सकते हो तरीके से। जेईई में मेंस में अगर अच्छा परफॉर्म किया हो तो जेईई एडवांस में बस आपको साथ में बस लगे रहना है, अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।